गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच चुनाव आयोग ने अब तक एक बड़ा फैसला लिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजे के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने ये सख्त फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस या अन्य राजनीतिक जुलूस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। भाजपा नेता शमीक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर कहा है कि हम कोरोना रोकथाम में किसी भी तरह के कदम का स्वागत करते हैं। निर्वाचन कमिशन सम्पर्के मद्रास हाईकोर्टेर এই অবজারভেশন এটা অনভিপ্রেত। যদিও আমি নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নই, এটা নির্বাচন কমিশনই উত্তর দিতে পারবে। তিনি যে কথা বলেছেন তার মধ্যে তার হয়তো মানুষের জন্য আবেগ থাকতে পারে, কিন্তু যে কথা বলেছেন বাস্তব থেকে তা বহু দূরে। মহারাষ্ট্রে কোনো নির্বাচন নেই, দিল্লিতে নেই, কর্ণাটকে নেই, ব্যাঙ্গালোরে নেই, ব্রাজিলে নেই, আমেরিকায় নেই, জার্মানিতে নেই, লন্ডনে নেই। এই কথা বলবার কতটা তিনি মহামান্য আদালত এখন বলেছেন, এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যে কথা বলছে তারা এই বক্তব্যটাকে নিয়েই তারা নির্বাচনে কাজে লাগিয়েছে। আমার মনে হয় না এসব কথার কোনো গুরুত্ব আছে, কারণ নির্বাচন শুরু হয়ে যাওয়ার পর মহামান্য আদালতের কোনো এখতিয়ারই নেই নির্বাচন বন্ধ করা। সংবিধান তাকে নির্বাচন কমিশনকে সেই সুরক্ষা দিয়েছে। সেটা বলতে পারেন। আমি তো আবার বলছি, কোভিড প্রোটোকলের জন্য যা পদক্ষেপ নেওয়া হোক নির্বাচন কমিশন নিক, নিঃসন্দেহে এটা মানুষের জীবনের ব্যাপার, পরিস্থিতি ভয়াবহ। রাজ্য সরকার দায়িত্ব পালন করে মানুষকে আতঙ্কিত করছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমি আবার বলছি নির্বাচন কমিশনের গতিকে, নির্বাচন কমিশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার এখতিয়ার বা ক্ষমতা আদালতকে ভারতের সংবিধান দেয়নি। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে, বিধি মেনে, কোভিড প্রোটোকল মেনেই আমরা নির্বাচনে প্রচার করেছি। এখন যেটা দেখার বিষয়, এতদিন তো শোনা যাচ্ছিল, আপনারাই এসে প্রশ্ন করছিলেন, দেখাচ্ছিলেন টিভিতে, নাড্ডার সভায় লোক নেই, অমিত শাহ রেগে গেলেন, তৃণমূলের নেতারা বলছিল খালি প্লাস্টিকের চেয়ার। তাহলে খালি প্লাস্টিক চেয়ারই করোনা সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম, এটাই প্রমাণ হচ্ছে। ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে মানুষ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবাসী তৃণমূলকে বিদায় দিয়েছে, বিজেপিকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে ষষ্ঠ দফার নির্বাচন পর্যন্ত। গতকালকের নির্বাচন এবং আগামীকালকের নির্বাচন मार्जिन बढ़ाने निर्वाचन। भारत में कोरोना मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट पर 15 मई तक रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत यात्रा करने पर पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए ये रोकथाम कम से कम 15 मई तक जारी रहेगी। While when you go to a red list like they have in the United Kingdom, remember in the United Kingdom, this is about where they restrict entry into the country just for citizens. So they currently allow travel into the United Kingdom for non-citizens. And so the red list, as I understand it, applies to where they restrict it to citizens. Now Australia already has that in place for every country in the world. You can't come to Australia, you can't do that unless there's a specific exemption which is granted by the Border Force Commissioner for any number of quite specific purposes. And so India is the only country of major point of embarkation into Australia that has been identified as a risk at this point, at that level. They've looked across a range of other countries. It wasn't that long ago that we were having serious concerns about Papua New Guinea, and what we've seen as a result of the pause we put in place for arrivals out of Papua New Guinea into Queensland is we've seen the proportion of cases of Papua New Guinea originated infections drop significantly. दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों के बेड्स की कमी है तो ऑक्सीजन की भी पूरी किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही राजधानी दिल्ली तक पहुंचने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। संकट से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लॉट लगेंगे। जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में
परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है, चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से बुरा हाल है। कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए यहाँ भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी बीच सीमित संख्या में शादी की इजाजत दी गई है। सोमवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा ही बेहद सीमित संख्या में लोगों के बीच एक विवाह संपन्न हुआ। इस शादी की खास बात ये थी कि दूल्हा दुल्हन दोनों ने पीपीई किट पहनकर 7 फेरे लिए। ये नीचे बैठ। अरे यार हिम्मत। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए 5 सितारा शोका होटल में 100 कमरों का कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाने का आदेश दिया है। जज और न्यायिक कर्मचारियों के परिवार भी इसका प्रयोग कर पाएंगे। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के निवेदन के बाद ये फैसला लिया है। देश भर में कोरोना की दूसरी वेव तेजी से पैर पसार रही है। हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कोविड मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे अस्पतालों की हालत खराब हो रही है। इस बीच जयपुर में राधा स्वामी सत्संग भवन में 700 बेड का कोविड केंद्र बनाया गया है। बात आती है कि ऑक्सीजन की, क्योंकि चारों तरफ इसी चीज़ का हाहाकार मचा हुआ है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कालाबाजारी हो रही है। सर मैं आपको बता देना चाहूँ, घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो इस अगर कोविड सेंटर में कोई भी पेशेंट आता है तो उसको अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको यहाँ मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं सर आपको बताना चाहूँ कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ऑक्सीजन की स्टॉक, जो ऑक्सीजन की स्टॉक के साथ साथ सिलेंडर के साथ साथ जो वेंटिलेटर की जो प्रोसेस होती है, वेंटिलेटर यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। उसके बाद में सर जो पेशेंट नॉर्मल है उसको ओपीडी में डॉक्टर देखने के बाद में डिसाइड करेंगे उसको आईपीडी में भेजना है या नहीं भेजना। आफ्टर देन क्या होगा सर कि उस पेशेंट को अगर लगता है कि वो पेशेंट यहाँ पे आने के बाद में कि पेशेंट सीरियस है तो यहाँ पे वेंटिलेटर की भी सुविधा है। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भारी कमी है। ऐसे में इनकी तत्काल जरूरत को पूरा करने में ब्रिटेन से लाइफ सेविंग हेल्पेज पैकेज की पहली खेप आज सुबह दिल्ली पहुंची, जिसमें 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से अब आंदोलन को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच भी उनका आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ सोमवार को चर्चा की। बैठक के बाद बिपिन रावत ने कहा कि पिछले 2 साल से सेवानिवृत्त हुए सभी मेडिकल कर्मचारी अपने घरों के पास स्थित कोविड-19 केंद्रों में काम करेंगे। देश में कोरोना की बेकाबू दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक वैक्सीन के 14.19 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। वहीं 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण भी शुरू होगा। इस तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी। देश भर में कोरोना का कहर महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। हर रोज कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एक्टर ने रविवार को महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगे फ्रंटलाइन वर्करों को 5000 फूड पैकेट भेजे हैं। कोरोना संकट के बीच किसान आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर टिके हैं। कोरोना से बचने के लिए राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर में खुद को सैनिटाइज किया। दवाइयाँ, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और अस्पतालों में बेड्स की कमी की बातें आम हो चली हैं। शमशान और कब्रिस्तानों में भी भीड़ है। हालत ऐसी है मानो सिस्टम फेल हो चुका है। कई राज्य सरकार लॉकडाउन की राह पर है। इस बीच कर्नाटक ने 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश देश में कोरोना का अगला हॉटस्पॉट माना जाएगा। आयोग के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1,19,604 नए मामले सामने आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।